1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 25 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स, एक्सोडस 29 चैप्टर 30 चैप्टर। हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 1 वचन से 30 वचन, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 30 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से, हिंदी में बीएसआई बाइबल में से और गुजराती में डीएसआई बाइबल में से। એક વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના મેથ્યુની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 1 થી 30 કલમ, નિર્ગમન 29મો અધ્યાય અને 30મો અધ્યાય। ઇંગ્લિશની અંદર આપણે કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું, હિન્દીની અંદર બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું, ગુજરાતીની અંદર બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું। थैंक यू जीसस। हम मैथ्यू 25 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स हम पहले पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से और फिर गुजराती में। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं आपा फादर गॉड, आपकी महानता के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आपा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। पवित्र प्रभु यीशु, अगर आपका खून बहा नहीं होता तो हम ये वचन को भी कभी स्वीकार नहीं सकते थे। बोलिए। પ્રભુ ઈશુ, તમારું લોહી અગર તમે વહેવડાવ્યું નહીં હોતે તો અમે આ વચનોને સ્વીકાર કરી શક્યા ન હોત। आपका लहू हमारी समझ में आने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने काम किया। તમારા લોહી વિશે અમને સમજમાં આવે એ માટે પવિત્ર આત્માએ અમારી અંદર કાર્ય કર્યું। अगर पवित्र आत्मा आपने भेजा ना होता परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा ने તમે મોકલ્યો ના હોતે तो परमेश्वर, प्रभु यीशु के बारे में हमको कुछ पता नहीं था। तो प्रभु यीशु विશે અમને કઈ જ ખબર નહીં હતી। यह कितना बड़ा काम पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में किया। આ કેટલું મોટું કામ પવિત્ર આત્માએ અમારી અંદર કર્યું। अब भी हम विनती करते हैं कि आप हमें इस वचन से दोस्ती कराइए। હવે અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આ વચનની સાથે અમારી મિત્રતા કરાવો। इस वचन में जीवन है, मार्ग है, सत्य है। આ વચનની અંદર જીવન છે, સત્ય છે, માર્ग છે। यह परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में है। અને આ તો પરમેશ્વરના ન્યાયપણા વિશે છે, जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने हैं। જેના કારણે અમે પરમેશ્વરની સામે છીએ। नहीं तो पापी परमेश्वर के सामने रुक नहीं सकता है। નહીં તો પાપી એ તો પરમેશ્વરની સામે થોભી શકતો નથી। क्योंकि परमेश्वर ने दया किया हमारे ऊपर, કેમ કે પરમેશ્વરે આપણા પર દયા કરી। इसीलिए हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, એટલા માટે વિનંતી કરીએ છીએ પવિત્ર આત્મા, हमें और भी परमेश्वर के योग्य बनाइए। અમને और भी વધારે પરમેશ્વરના યોગ્ય બનાવો। और हमें परमेश्वर के धार्मिकता की समझ आने दीजिए। અને અમે પરમેશ્વરની ન્યાયપણાની સમજ અમારી અંદર આવવા દો। हमें वचन की गहराई में रखिए। અમને વચનની ગહેરાઈમાં રાખો। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। આમેન, આમેન, આમેન। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 25 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स तक। द पैरेबल ऑफ द 10 वर्जिन्स of the talents of the last judgment। First verse, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom, and 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made,
Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came. The bridegroom came, and they that were ready went in with him to marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast laid is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. चैप्टर 30 चैप्टर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से, गुजराती में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। थैंक यू जीसस। हम निर्गमन पढ़ेंगे, एक्सोडस पढ़ेंगे 29 चैप्टर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें वचन के अंदर लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।
ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા, તમે અમને આ વચનની અંદર લઈ આવ્યા માટે અમે તમને આભાર માનીએ છીએ. आपका आत्मा है जो हमको वचन से गहराई में रखता है. તમારો આત્મા છે કે જે અમને વચનની ગહેરાઈની અંદર રાખે છે. हमारे पास कुव्वत नहीं है तेरे वचन की तरफ मन लगाने का. અમારી અંદર કાબેલિયત નથી કે અમે તમારા વચનની અંદર મન લગાવીએ. पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है. પવિત્ર આત્મા જ કાર્ય કરી રહ્યા છે. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी पहचान देने के लिए. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પવિત્ર આત્મા તમારી ઓળખાણ આપવા બદલ. नासरी यीशु मसीह के नाम में वचन हमारी समझ में आने दीजिए. ઈસુ નાસીના નામથી માંગીએ છીએ કે વચન અમારી સમજની અંદર આવે. विनती करते हैं सुन और कबूल कर पिता. आमेन आमेन आमेन. વિનંતી કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા, સાંભળો અને કબૂલ કરો. આમેન આમેન આમેન. हम पढ़ेंगे एक्सोडस 29 चैप्टर, द sacrifice and ceremonies of consecrating the priests, the continual burnt offering, God's promise to dwell among the children of Israel. First verse से पढ़ेंगे. And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest's office. Take one young bullock and 2 rams without blemish, and unleavened bread and cakes unleavened, tempered with oil, and wafers unleavened, anointed with oil. Of wheaten flour shalt thou make them, and thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket with the bullock and the 2 rams. And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water. And thou shalt take the garments and put upon Aaron the coat and the robe of the ephod, and the ephod and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod. And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre. Then shalt thou take the anointing oil and pour it upon his head and anoint him. And thou shalt bring his sons and put coats upon them. And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them. And the priest's office shall be theirs for a perpetual statute. And thou shalt consecrate Aaron and his sons. And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock. And thou shalt kill the bullocks before the Lord by the door of the tabernacle of the congregation. And thou shalt take off the blood of the bullock, and put it upon the horns of the altar with thy finger, and pour all the blood beside the bottom of the altar. And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is above the liver, and the 2 kidneys, and the fat that is upon them, and burn them upon the altar. But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp. It is a sin offering. Thou shalt also take Miriam, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram, and thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood and sprinkle it around about upon the altar. देखिए, एक वचन को ध्यान दीजिए. आप गुजराती में ध्यान दीजिए. ओके. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. 15 वचन पढ़िए. सिन ऑफरिंग. ओके, सिन ऑफरिंग. 14 वचन पढ़ के देखिए. वो पाप का बलिदान है. ઓકે. પણ વાછરડાનું માંસ તથા તેનું ચામડું તથા તેનું છાણ તું છાવણી બહાર અગ્નિથી બાળી નાખ, તે પાપાર્થાર્પણ છે. અને તું એક ઘેટો લે, અને ઘેટાના માથા પર હારૂન તથા તેના દીકરાઓ હાથ મૂકે. आगे 16 वचन. અને તે ઘેટાને તું કાપ
ને તેનું રક્ત લઈને વેદીની ચારે ગમ છાંટ. ठीक है. Sprinkle it around about upon the altar. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ, ठीक है. अब ये पाप का बलिदान है यहाँ पर बोला है, या तो बहुत पहले वचन से हम पढ़ते पढ़ते आए थे, तो ये सब विधि बताते बताते हम पहुंच गए 14 वचन तक, तब पता चला ये पाप का बलिदान बताया जा रहा है, ठीक है. मैं आपको ये पूछती हूँ कि यहाँ पे ये सब विधियां करने से पाप का बलिदान कर दिया जाता है, मतलब पाप को छोड़ दिया जाता है, ठीक है. ठीक है. हाँ, यानी पाप सिन ऑफरिंग का मतलब क्या है? बलिदान है ना. पाप का बलिदान, ठीक है. यानी पाप की खातिर बलिदान देना. समझ में आ रहा है? समझा? हाँ, समझा. पाप की खातिर बलिदान करना, ठीक है. यानी पाप है तो उसके लिए एक बलिदान देना है, ठीक है. हाँ, अब मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर, ये सारा चीज, ये सारा प्रकार जो किया जा रहा है विधियों के अंदर, इससे क्या फर्क पड़ता है मनुष्य के अंदर, यानी इजराइल लोग जो मांस और लहू के मनुष्य जाति है, ठीक है, लेकिन उनको परमेश्वर ने अपनी जाति बनाया है, ठीक है. उनका पीढ़ी जो आया हुआ है वो अब्राहम से उसने सेपरेट किया. नूह के समय से ही उसने अब्राहम तक की पीढ़ी को संभाल के रखा, फिर अब्राहम से उसने अलग करके 12 गोत्र निकाले. 12 गोत्र से आगे इस्राएल शुरू हो चुका है, ठीक है. अब यहाँ ये जो है ना एरिया ऑफ लाइफ, ये परमेश्वर ने शुरुआत किया है, ओके. ये परमेश्वर की शुरुआत है कि मनुष्य, ये इस्राएल जाति जो है, ये और परमेश्वर दोनों के बीच में पाप नहीं रहना चाहिए, ठीक है. हाँ, यानी देखो, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ संबंध नहीं रखता है. ऑलरेडी भजन संहिता में हमने पढ़ लिया है. भजन संहिता में ऐसा लिखा है, धर्म और अधर्म के सिंहासन इकट्ठे नहीं लगते हैं, ओके. और 135 भजन संहिता में ऐसा भी लिखा है कि जो काठ के, मिट्टी के, ऐसे जो भी कुछ बनाते हैं फिर उसकी भक्ति करते हैं, ऐसा जो भी करते हैं, उसके पास आंखें तो है, ठीक है, लेकिन देखना नहीं आता है. मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है. शरीर ऐसा ढांचा तो बनाया हुआ है लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, ठीक है. तो मैंने एक जन को सवाल किया था, ऐसे कैसे है? फिर वही तो फिर बाद में हमारे लिए डरने का कारण बनेगा, ऐसा वचन भी लिखा है. वही फिर अगर हमने उनको भक्ति किया तो हमको वही डरने वाला कारण बन जाएगा. समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने ये बात किया था, ऐसे कैसे? वो तो डराते हैं हमको, और वचन कह रहा है डरो मत उनसे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो ऐसे कैसा नहीं डरने का? तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे उस समय क्या मालूम पड़ा, इसका मतलब क्या है, जो परमेश्वर की युक्ति है ना, ओके, वो समझ नहीं सकेंगे, ओके. जो परमेश्वर का भेद है ना, उनके पास वो नहीं रहेगा, ओके. जो परमेश्वर के रहस्य है ना, वो उनको नहीं मिलेगा. समझ में आया? इसके लिए जगत के अंदर कल हम बात कर रहे थे ना कि ऐसा कैसा ये लोग हमारे बारे में कर सकते हैं, ऐसे कैसे, क्या इनका फ्रीडम कहाँ पर है, हमको वो देखने की जरूरत है, ओके. हम सोच रहे थे ना ऐसा. तो यही वो बात है कि वो वही जानकारी से चलते हैं, हमारे पास वो जानकारी नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की जानकारी है. समझा आपको? हाँ. और परमेश्वर की जानकारी जो है ना, वही हमारा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, भला और बुरा का फल मत खा, ओके.
तो वही जानकारी परमेश्वर ने मना किया था, मत खा। समझ में आया? अगर तू उस जानकारी को लेगा भले और बुरे ज्ञान का, तो निश्चित मृत्यु है। समझ में आया? ओके, निश्चित मृत्यु है। तो परमेश्वर जीवन है, ओके, और मृत्यु से उसका क्या वास्ता? सही है ना? तो इसके लिए आदम और हवा को उसने उस बगीचे से बाहर कर दिया, क्योंकि उस बगीचे का सिर्फ जीवन के साथ वास्ता है। ओके, समझा? तो वो इंस्ट्रक्शंस जो आज दुनिया के अंदर चल रहा है ना, उस इंस्ट्रक्शंस में जीवन नहीं है। ओके, समझा? और इसके लिए वो इतना फैला हुआ है ना कि मनुष्य उसके अंदर पगला गया है। ये शक्ति, वो शक्ति, ये दिन, वो दिन, ये खाना, वो पीना, वो रहना, इतना गहरा डूब गया है उसके अंदर सब मनुष्य जाति कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब बस हम लोग सब कुछ बन गए हैं। ओके, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सच्चाई वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सच्चाई जो रखी है, वो सच्चाई परमेश्वर के पास से इन बातों में नहीं है। वो समझ में आया? आया समझ में? अब हमारे ऊपर चुनौती है, ये हमारे ऊपर चुनौती है। 99% लोग सब कुछ जानते हैं संसार में। अभी कुछ भी YouTube के द्वारा बोलो, बुक्स के द्वारा बोलो, लोगों के प्रचार, मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग सिखा रहे हैं आजकल, वो प्रकार से टीचिंग्स में से बोलो, कहीं से भी बोलो, आज बच्चा बच्चा जानता है एक अलग दुनिया है पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य अलग एक जगत है। समझ में आया? ओके, रहस्य कुछ बाकी नहीं है, ठीक है? रहस्य कुछ बाकी नहीं है उस जगत का, उस संसार का। समझ में आया? अब वो संसार के अंदर हम रह रहे जहाँ पे सब कुछ एडवांस में चल रहा है, एडवांस। ओके, बहुत ज्यादा स्पीड में प्रगति करते जा रहा है वो सारे रहस्य की बातों में। समझ में आया? और वो इतना गहरा जा रहे, इतना गहरा जा रहे लोग इसके अंदर कि उनको लगता है ये ही दुनिया है, ये ही जीवन है। समझा? लेकिन वो बड़ा धोखा खा रहे, क्योंकि जो ये संसार के अंदर है, जगत के अंदर है, चाहे जितना गहराई में जाओ उन बातों को जानते हुए, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। सब कुछ परमेश्वर ने फेंक दिया है, कूड़ा करकट है वो। समझ में आया? राइट। हाँ, अगर ये कूड़ा करकट है, हाँ, इस कूड़ा करकट के बीच में हम रह रहे, ये कूड़ा करकट का हमको परेशानी हो रहा है, तो परमेश्वर ने वैसे ही पहले बोल दिया है, जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा वही जय प्राप्त करेगा। बराबर है ना? और जय कैसे प्राप्त करना है? यीशु के लहू के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और वचन के द्वारा। सही है? प्रकाशित वाक्य में दिया है जीत कैसे पाया जाता है? यीशु के लहू के द्वारा, गवाही देने के द्वारा, वचन के द्वारा। ओके, तो हमको ये दुनिया को जीतना है। समझा? इस दुनिया के तौर तरीके में बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है जो हमको इफेक्ट करता है। समझा? हाँ, तो परमेश्वर ने बोला इस इफेक्ट के बीच में तुमको 3 हथियार है, एक लहू है, ठीक है, एक गवाही है और तीसरा वचन है। ओके, समझ में आया? समझा। तो यही बात हव्वा को बोला था कि तू क्या कर, भले बुरे ज्ञान का फल मत खा, क्योंकि निश्चित मृत्यु है। बराबर है? और हमको क्या बोला है? हम अभी मसीह लोगों को क्या बोला है? ये इफेक्ट के बीच में तुम लोग 3 हथियार यूज करो, यीशु का लहू यूज करो और गवाही दो और वचन को यूज करो। ठीक है? अगर हम हव्वा की तरह करेंगे, जो मत करो कहा है, ठीक है, उसी के पीछे चले जाएंगे, और हमको जो करो कहा है उसको हम नहीं करेंगे, तो हव्वा मृत्यु के साइड में चली गई, हम भी मृत्यु के साइड में जाएंगे। समझ में आया आपको?
ओके, हव्वा को बोला था तुम मृत्यु का फल खा मत, भले बुरे ज्ञान का फल खा मत, ठीक है। हमको बोला है तुम ओवरकम करो, ओके, तुम इस इफेक्ट को जीत लो, उसके ऊपर प्रबल हो जाओ 3 हथियार के द्वारा। समझ में आया? राइट। ओके, और अगर हम नहीं यूज करेंगे ये 3 हथियार तो ये अफेक्ट हमको निगल जाता है। समझ में आया आपको? ओके, तो हमारा यहाँ पर निगल नहीं जाना हमारा प्रूफ है कि हम 3 हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। समझा? ओके, आप विश्वास से गिरे नहीं, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे, मैं आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ, हम आगे बढ़ते जा रहे। अपोजिशंस आ रहे हैं, ओके, विरोध आ रहे, कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी बिल्कुल नहीं रहता है। हम बढ़ रहे, आगे जा रहे, हम विश्वास के दौड़ में दौड़ते जा रहे। तो इसका मतलब क्या है? हम यीशु का लहू भी यूज कर रहे हैं, गवाही भी यूज कर रहे हैं और वचन भी यूज कर रहे हैं, और हम जीतते हुए आगे जा रहे। समझ में आया? राइट। ओके, अब इस अफेक्ट के बीच में है, तो ये अफेक्ट के अंदर हम ये तीनों चीजें यूज किए जा रहे, तो हम कहीं ना कहीं तो निकलते जा रहे आगे। समझा आपको? ओके, तो हमको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ये कौन सा धागा और ये कौन सी मंजिल और ये कौन सी सीढ़ी और ये कौन से प्रकार की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समझा? ओके, अगर हम ये 3 हथियार यूज कर रहे, काफी है हमको जीतने के लिए। आमीन। और संसार के अंदर जो है वह सब झूठ है। ओके, हमारे पास ये 3 हथियार है। ये क्या है? ये सच्चाई है। समझा? ओके, तो कौन जीतता है? झूठ जीतता है या सच्चाई जीतता है? आप बताइए। ओके, तो अब हमारी जीत सच्चाई के अंदर रुकने की वजह से होगी। अगर हम संसार क्या कर रहा है ये इसके पीछे चले जाएंगे ना, तो हम हार जाएंगे। समझ में आया आपको? राइट। ओके, राइट। अगर हम संसार क्या कर रहा है इस तरफ हम देखने के लिए जाएंगे ना, हम हार जाएंगे। ओके, ये इफेक्ट क्या है? ओके, ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है? ओके, इसकी गहराई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है? ओके, ये कितना ऊंचा है, ये कितना नीचा है, ये कितना फैला हुआ है? अगर ये देखने जाएंगे ना, हम भटक जाएंगे। हम समझ में आया आपको? समझ में आया। हाँ, तो हम जो करने के लिए बोला है हमको, हम वो नहीं करेंगे ना, तो हम निश्चित है हार जाएंगे। समझा? राइट। नो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। राइट। ओके, आपको जो बोला है उसको करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो ये इफेक्ट के बीच में है आप लोग। ओके, फिर अगर बोलेंगे मुझे ऐसा महसूस होता है या वैसा मुझे कुछ लगता है या मुझे ये ड्रीम आया या मुझे ये कुछ ऐसा कुछ तो सुनने को आया, कोई कॉम्प्रोमाइज का जवाब नहीं है। आपके पास 3 हथियार ऑलरेडी है। ओके, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझा? अगर आप ये 3 हथियार यूज करेंगे तो आपको कोई मुश्किल दिखेगी नहीं, क्योंकि ये तीनों हथियार आपके हाथ में है। यीशु का लहू भी आपके पास है, वचन भी आपके पास है, गवाही भी आपके पास है। आपको क्या चाहिए और? सोच के देखिए। अब आपको चाहिए सिर्फ क्या मालूम, इसका इस्तेमाल करना। तो आप मुझे बताओ, अगर हवा ने अनाज्ञाकारिता किया, भले बुरे ज्ञान का फल खा लिया, बराबर है, उससे क्या हो गया? उसका अंत क्या लिखा था? निश्चित मृत्यु। राइट। हाँ, उसने उस वक्त अपना दिमाग ठंडा कर लिया, परमेश्वर के विरोध कर लिया, और फिर वहां पे जाके उसने वो फल खा लिया, निश्चित मृत्यु प्रवेश किया उसके अंदर। हाँ, हम भी जब परमेश्वर कहता है तुमको इस इफेक्ट के बीच में, अंधकार के इफेक्ट के बीच में तुमको 3 चीजें हैं। एक, यीशु का लहू यूज करो, दूसरा गवाही बोलो, और तीसरा
वचन बोलो, ठीक है। अगर तुम ये 3 हथियार को यूज नहीं करेंगे तो इफेक्ट निश्चित है कि हमको गुमराह करेगा। समझा आपको? ओके ओके ओके, राइट ओके। आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब इफेक्ट कर रहा है ना वो, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ओके। लेकिन जैसे ही वो इफेक्ट का वो भला बुरा फल का खाना और मृत्यु ने प्रवेश करना, उसका इफेक्ट आज दुनिया देख रही है ना? राइट। तो वैसा ही ऑन द स्पॉट इफेक्ट नहीं दिखता है आपको। राइट। ओके। ऑन द स्पॉट आपको फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी संकट के विरोध में ये 3 हथियार यूज नहीं किया, उसका रिजल्ट, नतीजा आपको मालूम पड़ेगा। राइट। ओके। चोरी नाश घात रहता है। राइट। ओके। कोई भी प्रॉब्लम रहने तो, कोई भी बीमारी रहने तो, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नेगेटिव रहने तो, आपको ओवरकम करने वाला हथियार उठाना ही पड़ेगा। समझा? अगर आपने नहीं उठाया, वहां पर शत्रु ने कुछ ना कुछ बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। समझा? चलो, उस दिन आपको नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ महीने नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ साल, महीने, दिन, जो भी टाइमिंग है, आपको वो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो जाएगा आपका। समझ में आया? क्योंकि निश्चित मृत्यु निश्चित है वो। अगर परमेश्वर की नहीं मानते हो तो उसका ऑपोजिट होना ही होना है। उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके। इसके लिए यीशु मसीह का हमारे अंदर का प्रभाव मालूम करके हमको जीना है। यहाँ देखो, परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। ओके। वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने रास्ता दिखाया, ये इस तरह का रास्ता, तुमको पाप अगर है तो बलिदान करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। वो बलिदान के चीजों को उसने चुनाव किया, मनुष्य ने नहीं। विधि उसने बनाई, मनुष्य ने नहीं बनाई। अब ये सारे विधि को अगर आप एक एक छांट के अगर लिस्ट बनाओगे और उन सारी चीजों के बारे में जानकारी निकालना शुरू करोगे, तो इतना गहरा आप फंस जाते हैं उसके अंदर कि हम सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे, क्या परमेश्वर ने ये सब ऐसा 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 करने का बताया, ये रहस्य क्या है इसके अंदर। तो आप अब्राहम को याद करो, जब वो 400 साल के बंधुआई में जाने वाले बोला गया था, तब उस वक्त में उसके पहले उसको बोला था, तू, तेरे और मेरे बीच में एक वाचा होने वाला है, इसके लिए कुछ ऐसे ऐसे पशु पक्षी मार के ऐसे ऐसे रख दे। और उस समय में उसको गहरी नींद आ गई थी, अंधेरा छा गया था, गहरी नींद आ गई थी। राइट। ये समय में क्या हो गया उसके साथ? ओके। ये समय में गहरे अंधेरे के बाद में एक आग निकली वहां से, और वो आग उस पशु पक्षी के बीच में से होकर चीरते हुए निकल गई। ठीक है। हाँ। किसी को नहीं मालूम क्यों परमेश्वर ने वही पशु पक्षी लिए। ओके। क्यों परमेश्वर ने ऐसे 2 टुकड़े करके दोनों साइड से रखने के लिए बोला, किसी को नहीं मालूम कि परमेश्वर का चलना कैसा है। आपको समझ में आ रहा है? यस। समझा? परमेश्वर कौन से रास्ते से आता है किसी को नहीं मालूम है। समझा आपको? समझा। हाँ। वचन क्या कहता है? अगर दुष्ट आत्मा एक रास्ते से आता है, 7 मार्ग से वो भाग जाता है। आपको पता है वो 7 मार्ग कौन से है? नहीं मालूम। हाँ। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, जो भेद मुझे मालूम है उसी भेद में बने रहो, क्योंकि शैतान के पास भी भेद है। समझा? समझ में आया? ओके। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, अगर तुम हथियार नहीं चलाओगे, अगर यीशु मसीह का लहू नहीं चलाओगे, अगर गवाही नहीं चलाओगे, अगर वचन नहीं चलाओगे, तो तुम कौन से रास्ते में जाते हो? डेफिनेटली तुम शैतान के सामने जा रहे हो। समझ में आया आपको? नो कॉम्प्रोमाइज, बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ हो जाओ, या तो आप जहां परमेश्वर का वचन आप यूज नहीं करेंगे, आप सीधे निकल जाते अधर्म के रास्ते में। तो यरीहो की तरफ जाने वाला इंसान क्या किया? अधमुहा होके गिरा। बराबर है? राइट। हाँ। तो आपको समझ में आना चाहिए, हमारा
प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है और परमेश्वर हमारे पास आने का रास्ता है। ये रास्ता है उसका, समझा? ओके, ये रास्ते में से शैतान नहीं आ सकता है। समझ में आया? ये रास्ते से सिर्फ मनुष्य, इस्राएल लोग जा सकते थे। ओके, ये सेम बलिदान, ये जैसा विधि लिखा है, ये सेम विधि अगर कोई शैतानी इंसान ने किया ना, ओके, तो वो परमेश्वर तक पहुंचता नहीं है। ये सेम विधि, समझ में आया आपको? समझा? परमेश्वर के पास पहुंचने का ये रास्ता अब बाइबल में लिखा है, ठीक है, कि पाप माफ होता है, इससे पाप खत्म हो जाता है। ठीक है, इजराइल लोगों ने ये सारा विधि पूरा किया। ओके, अब जब ये पूरा कर रहे होते हैं ना, तब वो एक रास्ता चल रहे होते हैं उनके स्पिरिट के अंदर से। समझा आपको? समझा? वो एक रास्ता चल रहे होते हैं स्पिरिट के अंदर से। अब जब वो पूरा विधि कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो रास्ता पहुंच गए होते हैं जहां परमेश्वर उनका इंतजार कर रहा होता है। समझा? चलो पीछे पलट जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे 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 स्टेप बाय स्टेप पीछे निकल जाओ। ओके, अभी तक विधि पूरी नहीं की, वो पीछे एकदम स्टार्ट में चले जाओ। अब देखो परमेश्वर कहाँ खड़ा है? विधि के बाद खड़ा है, विधि के पहले नहीं खड़ा है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो उन दोनों का कांटेक्ट स्पिरिट टू स्पिरिट कांटेक्ट नहीं हो सकता है। समझा आपको? ओके, मनुष्य का शरीर परमेश्वर नहीं बोल रहा है, लेकिन आत्मा से आत्मा अगर परमेश्वर का होना है तो आत्मा में पवित्रता होनी जरूरी है, और मनुष्य का पवित्रता खो चुका है। ठीक है, और इसके लिए मनुष्य पवित्र होना चाहिए तो उसको पहले उसके स्पिरिट को ट्रीटमेंट देके लाना पड़ता है। समझ में आया? और वो ट्रीटमेंट चलने का रास्ता शैतानी लोग नहीं चल सकते हैं। समझ में आया? कोई परमेश्वर के उस रास्ते से चल के नहीं आ सकता है। समझ में आया? हाँ, तो ये था पहले स्पिरिट का वॉक। समझा? जो इजरायली लोगों ने शरीर से कृत्य करते 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 वो स्पिरिट का वॉक पूरा पुराना नियम चलाया। समझ में आया? तो उनको भेद मालूम ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। ओके, तो वो उसमें प्रैक्टिस हो गए। ओके, उनको कंटाला नहीं आता है, कुछ नहीं आता, उनको मालूम है ये रोज का जरिया है, रोज करना है। हम लोग जैसे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पढ़ते, प्रेयर करते हैं, आमेन बोलते, बंद करते। अरे लेकिन आपको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग स्पिरिट वॉक कर रहे हैं। ओके, अगर ये वॉकिंग करते हैं ना तो फिर अंत में परमेश्वर खड़ा है हमारे लिए, इसके पहले नहीं। समझ में आया? राइट। समझा? तो आप और हम आत्मा के चाल चलने की वजह से हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, परमेश्वर हमारे तक पहुंचता है। ओके, वो हमारा चैनल है, लेकिन यही चैनल दुष्ट आत्मा नहीं जानता है। यही चैनल परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के जन के अलावा किसी को नहीं मालूम है। बाइबल सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन ये वाला स्पिरिट का चाल जो है ना, ये चाल केवल परमेश्वर ने जिनको अपने राज्य में लिया है, वही ये चाल से चल के परमेश्वर तक पहुंच सकता है। समझ में आया? राइट। समझा? इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है कि हम इस चाल को डेली चलते रहे। कोई मसीह ऐसा नहीं रहेगा जो ये चाल नहीं चल रहा होगा। समझा? क्योंकि यही के लिए पवित्र आत्मा दिया है मसीहों को। ठीक है, यही अंदर हमारा ये एक इंग्रेडिएंट है कि हम मसीह कहलाते हैं, कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। समझ में आया? अब हमारा स्पिरिट का पहचान क्या है मालूम है? अब हमारे स्पिरिट का पहचान पवित्र, ये हमारी पहचान है। समझा? अब शरीर से आप कैसे आपकी बदनामी होती है, शरीर से आप कैसे तुच्छ जाने जाते हैं, ओके, शरीर से आप कैसे परेशान कर दिए जाते हैं, ये सारा एरिया ऑफ लाइफ, शरीर के ऊपर होने वाला सब कुछ आपको 3 चीजों से जीतना है। ओके, एक परमेश्वर का वचन,
परमेश्वर का, यीशु का लहू और आपकी गवाही। ओके, डेली 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 डेली, हर पल, हर दिन, हर समय हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु, तेरे लहू से हम धोते अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के द्वारा हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। तेरे लहू के कारण हमारे पाप माफ हो गए। हम क्या कर रहे हैं मालूम? हमारे स्पिरिट को आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं हम। समझ में आया? ओके। हाँ, तो अंधेरे को हम क्या करते जा रहे? अंधेरे को काट के उजियाले में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे। राइट। समझ में आया? अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे, अगर हम रेगुलर हमारा आत्मिक चाल बढ़ाएंगे नहीं, तो अंधेरा हमारा हमको आड़े बैठता है। समझ में आया? समझा। ओके, वो आड़े बैठता है, हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। ओके, और जब आड़े आ गया, संघर्ष बढ़ गया, और फिर भी हम यीशु का लहू यूज नहीं कर रहे, फिर भी हम वचन नहीं पढ़ रहे, ऐसा ही करते रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। राइट। ओके, तो फिर हमको आगे बढ़ाने का जोर लगाने वाले अभिषेक दास दासियों का हम पीछा करते हैं। समझ में आया? समझा। ओके, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम करते हैं इसको? तो हम क्या कर रहे हैं? स्पिरिट वॉक कर रहे हैं। करेक्ट। ओके, अगर स्पिरिट वॉक रोज करते रहोगे तो आदम के पास परमेश्वर रोज आता था मिलने के लिए, है ना? तो हमारे पास भी परमेश्वर रोज हमारे लिए हमारे साथ बातें करते बैठेगा। समझा? लेकिन ये स्पिरिट वॉक के बिना हम नहीं आगे जा सकते हैं। समझ में आया? राइट। समझा? कितना पावरफुल परमेश्वर है हमारा, कि हमको जो देता है वो अहरे गहरे सबको नहीं पता है। महारथी बैठे दुनिया के अंदर, पता नहीं है उनको ये बात। राइट। ओके, राइट। एक सेकेंड में मम्मी को देख के आती हूँ। हिंदी बाइबल बीएसआई में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से लेकर 30 कलम तक हम पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं।
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટીઝ 1 વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના. માથેની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 1 થી 30 કલમ. નિર્ગમન 29મો અધ્યાય અને 30મો અધ્યાય. આપણે પહેલાં અંગ્રેજીની અંદર વાંચીશું, પછી હિન્દીની અંદર વાંચીશું અને પછી ગુજરાતીની અંદર વાંચીશું. અંગ્રેજીની અંદર જ્યારે આપણે વાંચીશું ત્યારે કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું. ગુજરાતીની અંદર જ્યારે આપણે વાંચીશું ત્યારે બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું. હિન્દીમાં પણ આપણે બીએસએલ બાઇબલમાંથી વાંચીશું. ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈ માથેની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 1 થી લઈને 30 કલમ આપણે વાંચીશું. તો આકાશના રાજ્યને 10 કુમારિકાઓની ઉપમા અપાશે કે જેઓ પોતપોતાની મસાલો લઈને વરને મળવા સારું બહાર નીકળી, અને તેઓમાંની 5 મૂર્ખ હતી ને 5 બુદ્ધિમાન હતી. કેમ કે મૂર્ખીઓએ પોતાની મસાલો લીધી ખરી, પણ તેઓએ સાથે તેલ લીધું નહીં. પણ બુદ્ધિવંતીઓએ પોતાની મસાલો સાથે પોતાની કૂપીમાં તેલ લીધું, અને વરને આવતા વાર લાગી એટલામાં તેઓ સર્વો ઝોકા ખાઈને ઊંઘી ગઈ. અને મધરાતે બૂમ પડી કે, જુઓ, વર આવ્યો, તેને મળવાને નીકળો. ત્યારે તે સર્વ કુમારિકાઓએ ઉઠીને પોતપોતાની મસાલો તૈયાર કરી. અને મૂર્ખીઓએ બુદ્ધિવંતીઓને કહ્યું કે, તમારા તેલમાંથી અમને આપો, કેમ કે અમારી મસાલો હોલવાઈ જાય છે. પણ બુદ્ધિવંતીઓએ ઉત્તર દીધો કે, કદાચ અમને તથા તમને પૂરું નહીં પડે, માટે તમે વેચનારાઓની પાસે જઈને પોતપોતાને સારું વેચાતું લો. અને તેઓ વેચાતું લેવા ગઈ એટલામાં વર આવી પહોંચ્યો, ને જેઓ તૈયાર હતી તેઓ તેની જોડે લગ્ન જમણમાં ગઈ, અને બારણું બંધ કરવામાં આવ્યું. પછી તે બીજી કુમારિકાઓએ આવીને કહ્યું કે, ઓ સ્વામી, સ્વામી, અમારે સારું ઉઘાડ. પણ તેણે ઉત્તર દીધો, હું તમને ખચિત કહું છું કે હું તમને ઓળખતો નથી, માટે તમે જાગતા રહો. કેમ કે દહાડો અથવા તે ઘડી તમે જાણતા નથી. કેમ કે તેનું આવવું એક માણસના જેવું છે, જેણે પરદેશ જતી વખતે પોતાના ચાકરોને બોલાવીને પોતાની સંપત્તિ તેઓને સોંપી. એકને તેણે 5 તાલંત, ને બીજાને 2, ને ત્રીજાને 1, એમ હરેકને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપ્યું. અને તે પરદેશ ગયો. પછી જેને 5 તાલંત મળ્યા હતા તે તરત જઈને વેપાર કરીને તે વડે બીજા 5 તાલંત કમાયો. તેમજ જેને 2 તે પણ બીજા 2 કમાયો. પણ જેને 1 તાલંત મળ્યો હતો તેણે જઈને જમીનમાં ખોદીને પોતાના ધણીનું નાણું દાટી મૂક્યું. અને લાંબી મુદત પછી તે ચાકરોનો ધણી આવે છે, ને તેઓ પાસેથી હિસાબ લે છે.
ત્યારે જેને 5 તાલંત મળ્યા હતા તે બીજા 5 તાલંત પણ લેતો આવ્યો અને કહ્યું કે, પ્રભુ, તે મને 5 તાલંત સોંપ્યા હતા. જો હું તે ઉપરાંત બીજા 5 તાલંત કમાયો છું. ત્યારે તેના પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, શાબાશ, સારા તથા વિશ્વાસુ ચાકર, તું થોડામાં વિશ્વાસુ માલુમ પડ્યો છે. હું તને ઘણા પર ઠરાવીશ. તું તારા પ્રભુના આનંદમાં પેસ. અને જેને 2 તાલંત મળ્યા હતા તેણે પણ પાસે આવીને કહ્યું કે, પ્રભુ, તે મને 2 તાલંત સોંપ્યા હતા. જો હું તે ઉપરાંત બીજા 2 તાલંત કમાયો છું. તેના પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, શાબાશ, સારા તથા વિશ્વાસુ ચાકર, તું થોડામાં વિશ્વાસુ માલુમ પડ્યો છે. હું તને ઘણા પર ઠરાવીશ. તું તારા પ્રભુના આનંદમાં પેસ. પછી જેને 1 તાલંત મળ્યો હતો તેણે પણ પાસે આવીને કહ્યું કે, પ્રભુ, જ્યાં તે નથી વાવ્યું ત્યાંથી તું કાપનાર ને જ્યાં તે નથી વેર્યું ત્યાંથી તું એકઠું કરનાર છે. એવો કરડો માણસ મેં તને જાણ્યો. માટે હું બીધો ને જઈને તારો તાલંત મેં ભોંયમાં દાટી મૂક્યો. જો તને તારું પહોંચ્યું છે. અને તેના પ્રભુએ તેને ઉત્તર દીધો કે, અરે ભૂંડા તથા આળસુ ચાકર, જ્યાં મેં નથી વાવ્યું ત્યાંથી હું કાપું છું ને જ્યાં મેં નથી વેર્યું ત્યાંથી હું એકઠું કરું છું. એમ તું જાણતો હતો તો તારે મારું નાણું શાહુકારોને આપવું જોઈતું હતું કે હું આવું ત્યારે મને વ્યાજ સુદ્ધા મારું મળત. એ માટે એની પાસેથી તાલંત લઈને જેની પાસે 10 તાલંત છે તેને તે આપો. કેમ કે જેની પાસે છે તે દરેકને અપાશે ને તેને ઘણું થશે. પણ જેની પાસે નથી તેની પાસે જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે. અને તે નકામા ચાકરને બહારના અંધકારમાં કાઢી મૂકો. ત્યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે. थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर ધન્યવાદ કરીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર। इन वचन के आधार से हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आना श्री यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। આ વચનોના દ્વારા ગુજરાત પણ તમે અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો। ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરલીનેસની અંદર તમે અમને લઈને આવો। ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। આમેન આમેન આમેન।